السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شبیر ثاقب صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کا تعلق ہے، جو محبت کا تعلق ہے، گہری شدید محبت کا تعلق ہے، وہ سیکھا ہے امام مہدی اور مسیح موعود حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیونکہ ہم اس مسیح موعود اور امام مہدی کے ماننے والے ہیں جس نے یہ فرمایا، جس نے یہ کہا کہ مجھے یہ مقام یعنی کہ مہدویت کا اور مسیحیت کا جو مقام ہے اور نبوت کا جو مقام ہے، امتی نبوت کا جو مقام ہے، وہ مجھے صرف اور صرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل عشق کے نتیجے میں ملا ہے۔ تو اگر آپ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، آپ کی تحریرات سے ایک نقشہ پیش کر سکیں جس سے ہم اس محبت، اس عشق، اس عقیدت کا اندازہ لگا سکیں جو آپ کو اپنے آقا و مولا، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ آصف صاحب، جس طرح ابھی آپ نے ذکر فرمایا ہے، بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا مسیح اور مہدی بنایا ہے، آپ کے وجود کا ذرہ ذرہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت سے گوندا گیا تھا، اور آپ کی روح کے ذرے ذرے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ختم ہونے والی ایک دائمی ایسی رو تھی جو ہمیشہ نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ آپ کے برکت سے اور آپ کے طفیل سے قیامت تک آپ کے متبعین میں جاری و ساری ہے۔ اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کا، جس طرح بھی آپ نے ذکر فرمایا، میں کچھ حصے رکھوں گا، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے چند واقعات بہت، جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت اور آپ کی کامل اطاعت میں گزرا ہے، اور یہی دراصل آپ کا سب سے بڑا اور سب سے حقیقی مقام ہے کہ آپ کامل عاشق رسول تھے، کامل اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے تھے، اور آپ نے اس بات کا بارہا ذکر فرمایا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر بار ذکر فرمایا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملا ہے۔ مثلا میں صرف ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جو خلاصہ ہے سارے اس مضمون کا۔ فرماتے ہیں کہ این چشمہ رواں کے بخل کے خدا دے ہم، یک قطرہ زبہر کمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں دنیا کو دے رہا ہوں، جو چشمہ جاری ہے میری طرف سے، یہ چشمہ میرا نہیں ہے، یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سمندر کا ایک قطرہ ہے جو مجھے ملا ہے، اور میں اس کو کل عالم میں تقسیم کر رہا ہوں، اور وہ قطرہ اتنا بڑا ہے کہ کل عالم کی سیرابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کا اور آپ کی روح کا ذرہ ذرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، آپ کے عشق سے، آپ کی اطاعت اور کامل فرما برداری سے معمور تھا، اور وہ فیض اور وہ نور آپ کی ذات کے ذرے ذرے سے بھی ظاہر تھا، اور اس کا ایک بڑا عظیم الشان اظہار آپ کی کتب کی صورت میں ہوا ہے۔ چنانچہ 23 جلدوں میں جو آپ کی کتب ہیں، صفحات کے رنگ میں اگر معین اعداد و شمار سامعین کے سامنے رکھوں تو صرف کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صفحات 11,686 ہیں۔ اس کے علاوہ مکتوبات ہیں، ملفوظات ہیں، اشتہارات ہیں، تو کوئی 1,500 سے زائد وہ صفحات بنتے ہیں، اور بلا مبالغہ آپ کی کوئی ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت، آپ کی اطاعت اور آپ کے فیض کا غیر معمولی طور پر اظہار نہ ہو۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں حضور کے الفاظ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضور ایک موقع پر فرماتے ہیں، یہ تجلیات الہیہ جو حضور کی کتاب ہے، میں اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں، میں اسی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے۔ فرمایا، اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ و مخاطبہ ہرگز نہ پاتا۔ ایک جگہ حضور فرماتے ہیں، ہر شخص کو یہ جو میں ابھی اقتباس رکھوں گا، یہ ایسا عظیم الشان ہے کہ ہر وہ شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور عشق کا تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے ایک عظیم الشان رہنمائی ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں،
हम जब इंसाफ की नजर से देखते हैं तो तमाम सिलसिला नबूवत में से आला दर्जे का जवामर्द नबी और जिंदा नबी और खुदा का आला दर्जे का प्यारा नबी सिर्फ एक मर्द को जानते हैं, यानी वही नबियों का सरदार, रसूलों का फख्र, तमाम मुरसलों का सरताज, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अगली लाइन खासतौर पे सुनने से ताल्लुक रखती है। फरमाते हैं जिसके ज़ेरे साया 10 दिन चलने से, जिसके ज़ेरे साया 10 दिन चलने से वो रोशनी मिलती है जो पहले इससे 1000 बरस तक नहीं मिल सकती। बस ये हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बरकत और फैज़ है, आपका एक इल्हाम है। अल्लाह ताला ने आपको मुखातब करके फरमाया कुल्लो बरकतिन मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबारका मन अल्लमा व तअल्लमा, कि तमाम बरकतें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने में है। बस बहुत ही बाबरकत है वो शख्स जिसने सीखा, सिखाया और उसने सीखा। तो ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ का एक अजीम शान इजहार है। एक बात मैं यहाँ ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत करने वाले, आपके औसाफ हमीदा को बयान करने वाले तो बिलाशुबा आपकी बेसत से लेकर आज तक हैं, क़यामत तक होते चले जाएंगे, सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों की तादाद में है। और हर एक ने अपने अपने रंग में उस इश्क व मोहब्बत का इजहार किया है और हर एक का ही वो इजहार इस लायक है कि उसको देखा जाए। लेकिन बानिए जमात अहमदिया के इश्क व मोहब्बत में और दूसरों में एक बहुत ही अजीम शान फर्क है, और वो फर्क ये है कि बानिए जमात अहमदिया ने इस बात को बार बार बयान किया है कि दरअसल हकीकतन अगर कोई नबी अपने तमाम फयूज के साथ, तमाम बरक़ात के साथ, तमाम अनवार के साथ जिंदा है तो वो हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसका सबूत वो है जो मैं अभी इक़्तिबास पढ़ चुका हूँ कि 10 दिन जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया चले उसे वो नूर अता होता है जो हजारों साल में नहीं मिल सकता। बस ये नुक्ता ऐसा है जो बहुत कम तहरीरों में आपको मिलेगा या किसी पढ़ने वाले को मिलेगा। तो जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि हजारों सफ़ात हैं बानिए जमात अहमदिया के, मैं उन तहरीरात के सारी तफसील में नहीं जा सकता। खासतौर पर दुरूद शरीफ पढ़ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शर्त अव्वल है। बानिए जमात अहमदिया अल्लाह ताला के फल से हर वक्त आपके लबों से खुदा ताला के जिक्र और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद जारी होता था। मैं सिर्फ एक वाक़या इस वक्त आपके सामने रखता हूँ। हुजूर फरमाते हैं एक रात इस आजिज़ ने इस कसरत से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा कि दिलो जान इससे मुअत्तर हो गया। उसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि खुदा के फरिश्ते आबे ज़लाल की शक्ल पर नूर की मशकें इस आजिज़ के मकान पर लिए आते हैं, और एक ने उन फरिश्तों में से कहा ये वही बरकतें हैं जो तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजी थी। बस ये वो बरक़ात का सिलसिला है जो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात में जारी हुआ दुरूद शरीफ के ज़रिए से। मैं सिर्फ सब 2-3 वाक़यात की शक्ल में आपकी सीरत का ये हिस्सा रखना चाहता हूँ। बहुत लंबा मज़मून है और बहुत ही ईमान अफरोज़ है, लेकिन मैंने इंतखाब किया ऐसे वाक़यात का जो एक इंसान की बिल्कुल निजी और ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इंसान के दरअसल अखलाक का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो उसकी घरेलू ज़िंदगी में गुजरता है। हर इंसान बहुत सारी जगहों पर तो अपना कुछ न कुछ दिखा लेता है, लेकिन घर के माहौल में उसकी क्या सूरत है। आपके एक साहबजादा हजरत साहबजादा मिर्जा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये खाकसार हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के घर में पैदा हुआ, और ये खुदा की एक अजीम शान नेमत है जिसके शुक्रिया के लिए मेरी जुबान में ताकत नहीं, बल्कि हक ये है कि मेरे दिल में उस शुक्रिया के तसव्वुर तक की गुंजाइश नहीं। मगर मैंने एक दिन मरकर खुदा को जान देनी है। मैं आसमानी आका को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मेरे देखने में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र बल्कि महज नाम लेने पर ही हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसुओं की झिल्ली ना आ गई हो। फरमाते हैं आपके दिलो दिमाग बल्कि सारे जिस्म का रुआं रुआं अपने आका सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से मामूर था। आपके एक दूसरे साहबजादे जो सबसे बड़े थे आपकी पहली अहलिया से, मिर्जा सुल्तान अहमद साहब, और इनकी गवाही मैं इसलिए खास तौर पर बयान करना चाहता हूं कि ये उस वक्त जमात अहमदिया में दाखिल नहीं हुए थे, बानी जमात अहमदिया के मुत्तबईन में शामिल नहीं हुए थे। उनकी गवाही इस लिहाज से गैर मामूली है। तो साहबजादा मिर्जा सुल्तान अहमद साहब फरमाते हैं, एक बात मैंने वालिद साहब यानी बानी जमात अहमदिया में खास तौर पर देखी है, वो ये कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वालिद साहब जरा सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ जरा सी बात भी कहता तो वालिद साहब का चेहरा सुर्ख हो जाता और गुस्से से आंखें मुतगय्यर होने लगती और फौरन ऐसी मजलिस से उठ कर चले जाते। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो वालिद साहब को इश्क था, ऐसा इश्क मैंने किसी शख्स में नहीं देखा। तो ये हजरत मिर्जा सुल्तान अहमद साहब की गवाही है। हजरत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब रज़ियल्लाहु अन्हु जो बानी जमात अहमदिया अलैहिस्सलाम की हरम मोहतरम हजरत सईदा नुसरत जहां बेगम साहिबा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत अम्मा जान के बरादरे असगर थे, उनकी गवाही है। हजरत मीर साहब फरमाते हैं, मैंने आपको उस वक्त देखा जब मैं 2 बरस का बच्चा था, फिर आप मेरी इन आंखों से उस वक्त गायब हुए जब मैं 27 साल का जवान था। मगर मैं खुदा की कसम खाकर बयान करता हूं कि मैंने आपसे बेहतर, आपसे ज्यादा खलीक, आपसे ज्यादा नेक, आपसे ज्यादा बुजुर्ग, आपसे ज्यादा अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में गर्क कोई शख्स नहीं देखा। फरमाते हैं, अगर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ये बात सच्ची कही थी कि काना खुलुकुल कुरान, तो हम हजरत मसीह मौद की निस्बत इसी तरह ये कह सकते हैं कि काना खुलुकु हुब्बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इत्तिबाए ही, कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के अखलाक क्या थे? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी कामल इत्तिबा और आपकी पैरवी। तो बहुत सारे वाकयात हैं निजी जिंदगी में भी। एक दफा आपके घर में ये जिक्र हुआ, आपके ससुर हजरत मीर नासिर नवाज साहब ने जिक्र फरमाया हाजी का, तो आपने फरमाया कि ये तो ठीक है और हमारी भी दिली ख्वाहिश है, मगर मैं सोचता करता हूं कि क्या मैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार को देख भी सकूंगा। तो ये उस इश्क मोहब्बत का एक गैर मामूली इजहार था कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार का तसव्वुर करके भी फरमाते हैं कि मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात है। एक दफा हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु जो आपके पहले खलीफा बने, उनसे किसी ने कहा कि आप तो पहले भी बहुत बड़े आलिम थे और सारे हिंदुस्तान में आपका शोहरत था, आपने बानी जमात अहमदिया मिर्जा साहब की इताअत से क्या पाया है? तो हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहब ने फरमाया कि पाया तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ एक बात बताता हूं। फरमाया कि मैं पहले हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत मुझे ख्वाब में नसीब हुआ करती थी। जब से मैंने बानी जमात अहमदिया हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की इताअत और आपकी गुलामी में दाखिल हुआ हूं, मैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कशफी रंग में गोया ज़ाहिरी तौर पर भी मैं देखता हूं और आपकी ज़ियारत नसीब होती है। तो हजरत अक़दस बानी जमात अहमदिया अलैहिस्सलाम से जूं जूं किसी का ताल्लुक बनता चला जाता है, वो उस इश्क व मोहब्बत में, उस इताअत में बढ़ता ही चला जाता है। जिससे मैंने बताया कि आपका कलाम का एक एक लफ्ज़ इस बात की आईनादार है। मैं एक दो और सिर्फ पेश कर देता हूँ नमूने। फारसी का एक शेर मैंने पहले पढ़ा था, मैं अब एक अरबी का पढ़ देता हूँ। फरमाते हैं, या हिब्बे इन्ना का कद दखलत मोहब्बतन फी मुहजती व मदारे की व जनानी, क्या मेरे प्यारे तू तेरी मोहब्बत तो मेरे दिल और जान में दाखिल हो चुकी है। फिर फरमाते हैं, जिस्मी यतीर इलैका मिन शौक नला या ले तकानत कुव्वत तयरानी, कि मेरा जिस्म तेरी मोहब्बत और शौक में तेरी तरफ उड़ता चला जा रहा है। ऐ काश उसे पर नसीब हो जाए और उड़ने की ताकत नसीब हो जाए और वो उड़कर तेरे हुजूर पहुंच जाए। उर्दू कलाम में भी बेतहाशा नज़म में नसर में मसलन ये मशहूर शेर है, हमारे बच्चे बच्चे को आता है, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल भर मेरा यही है। फरमाते हैं, उस नूर पर मैं फिदा हूं, उसका ही मैं हुआ हूं, वो है मैं क्या हूं, बस फैसला यही है।
تو یہ جو فرماتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو الگ وجود کیا، فرماتے ہیں وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ جی بہت شکریہ شبیر ثاقب صاحب، جزاکم اللہ۔